आयज पण सो डॅडीक सांगूयात आमी ह्या रोखडे वचून या खंय ते फोड्या फोंड्या 10 मिनटात पावतले सो रिषभ प्रायज जय भोसले दिता टेस्टराक लागून प्रायज डॅडी प्रायज चेडो घेता सो डॅडी होलसेल बॅक टू द गेम अँड बॅक टू यू श्याम कलंगुटकर आनी खूब प्रायजां आसा जे खेळ पळोवपाक खेळटा तांकां प्रायजां मेळटलीत पूण खेळ पळोवपाक गेला आनीकूय प्रायजां तुमची वाट पळयता बॅक टू द गेम बॅक टू यू श्याम कलंगुटकर Thank you, Ajay bhai. Semi-final 2 match between Shri Kadamkar Dada Bandoda and Sai Ganesh Royals Vasco. Sai Ganesh Royals Vasco winning the toss, deciding to bowl first. Siddhivinayak committee member Ashley, you are requested to come here in the commentary box. Meanwhile, both the openers in the middle. Samarth Gawas, and along with him, it is Sagar, his partner at the other end. With the ball, it will be Unnikrishnan. Samarth Gawas and Hapali Kalangutkar, two overseas signings as far as the Sri Kadamkar Dada Bandoda are concerned. Talking about the Vasco, Sai Ganesh Royals Vasco, Surya Gaukar and Vinay Satarkar. Here we go with the first delivery of the semi-final 2. Which team of this meets the Datta Classes Asnora in that final? Good delivery, fast delivery, pacey delivery. We went in the middle, looked at the surface. Me and Vinay Satarkar discussing about the one who bowls fast can get away with it. And Unnikrishnan got away last night. Let's see if we can get away tonight in this semi-final one. Again, very fast, flat batted down the ground, straight to Vinesh at mid-off. Will be a dot delivery. In case if you have joined just now, then this is Siddhivinayak Cricket Estisco presenting Amdar Chashak Season 2 in collaboration with Shri Vishwajit Pratap Singh Rane, Honorable Minister of Health. Oh, good delivery, right in the block hole. Dot delivery. Requesting Shri Sagar Phatrekar to please take his seat on the dais. Would like Bunty to welcome him with flowers. Mr. Sagar Phatrekar, so please take your seat on the dais. Three dot deliveries. Again, swing and miss. Right in the block hole again. Another good delivery. Top stuff this from Unnikrishnan. One of the best in business is Samarth Gawas. Goes along nicely at the start. And currently he's been kept really quiet with those 4 magnificent deliveries. The entire pendal is being presented to you by Shri Sagar Phatrekar. Down the ground, up and over. And the fielder does exceedingly well. Oh, direct hit. How about that? Slow off the blocks was Sagar. And it was Satish Yadav with that bullet arm onto the stumps. Direct hit. And without facing a single delivery, has to go back for a diamond duck. Sagar. It's 1 for 1. Rocked early, the Shri Kadamkar Dada Bandoda.
And the Superman has arrived with the maximum. Score moves on to 7 after completion of 1. It's 7 for 1. Sri Kadamga Dada, Cricketers Bandoda. Hello. Change in bowling. It will be Vinay Satarkar from the tower end. 7 for 1 after 1. Right on the pads, looking for a single, but sent back. Rightly so. Don't want to take any risk at this stage. Good delivery again onto the pads. Not giving enough room for the batsman to free his arms. Bowling some tight line is Vinay Sadarkar. Here's a quick look at all the sponsors for this tournament. Bhavi Doifode, Siddhant Gaus, Bhavani Textiles, Bhushan Veranekar, Govekar Chicken Center, David, Vivan Fatrekar. That's up. And both the batsmen at the same end. And Shubham Fatte has to head back to the pavilion. No proper communication between both these batters. And always there was never a run there. Why did Shubham came in? And why did also Samarth Gavas try to get in the middle? Both at the same end, and Bales flashed. Another one gone. In some sort of trouble here, the Sri Kadamga Dada Bandoda. 7 for 2. Harshita Fashion, Parvati Marketing, Market Times, Sunil Naik, Mahalakshmi Stores, the Deep Ice Cream, Om Sai Saloon, Roston Pharmacy, Ramkrishna Naik, Diamond Tailor, Sachin Electricals, Kiara Toys and Gift Store, Ram, Navdurga General Stores, Saraswati Store, Mahesh Gowde, Mahalakshmi Enterprises, Sai Leela General Store, Siddhant Devurkar, Bhola, Mohsin Auto Service, Bhagwant Gaonkar. Meanwhile, back live. Shimmy down the wicket in the gap. By the time Asin Shingangutti, Asif Zamadar comes in and throws it back. Will just be a single. Coming back to that sponsors list, Manjunath, Mershi, Kalpit Naik, Bangalore Bakery, Mauli Pharmacy. Good delivery, chance of run out, directed, not quite. Samarth Gavas would have been back in the pavilion if that would have hit. Would have been close though. Single taken. Score moves on to 9 with that single. Second over in progress. Balaji Mobile, Jayamba, Sheikh Ali Footwear, Mahalakshmi Sweet Mart, Chamunda General Store, Ketal Fruits. Nicely played. Again in the gap. Asif again will cut it off. Will just be a single. Single to end the over. After completion of 2, it's 10. 10 for 2 after 2 overs. Done with the power play. Sri Kadamga Dada Bandora. Datta Maharshi, Golden Bar, Sahil Electrical Tattoo,
Durga Medical, Krishnaraj General Store, Om Sai Photo Studio, Gopiki Bar and Restaurant, Nauso Korgaonkar, Dr. Uday Kakodkar, Manthan Hazare, Amit Usgaonkar, Avdesh MRF, Chotu Tire, Chotu, Shamsher, Hamid General Store, Zaved, St. Francis Xavier, Shraddha Shirodkar, Ramu Sangodkar, Babu Taylor, Sahil Pathan, Chandra Bar and Restaurant. Meanwhile, change in bowling. That man again, Satish Yadav. What a throw that was from the boundary rope. Direct hit onto the stumps to send Sagar packing. Down the ground, in the air, and the veteran there. There's that man again. Vinod Wilson taking that catch. Cool as a cucumber on the boundary rope. And Shubham Desai has to head back to the pavilion. Third wicket down of the Sri Kadamga Dada Bandoda. In deep, deep trouble at the moment. No one really trying to give a stand, give a partnership in the middle along with Samarth Gavas. 10 for 3. Lucky Star Saloon, Shamshed Khan, Viraj Naik, Bhumika Wine Shop, Vikas Hiramat, Dilesh Madkekar, Ismail Annapurna Hotel, Khushi Dimple, Mahesh Sangodkar, Manjuna Dudpi, Muhammad Rafiq, Harman Sheikh Krishna Mobile, Santosh Harushi Gaonkar, Omkar Belpuri. Nicely played by Mahesh. Dot delivery. Mr. Mobile, Rajesh Footwear, Chiffon Haircutting, Amul Ice Cream, Bhumika Photo Studio, Sonal Naik, Dream Girl Ladies Beauty Parlor, Anthony Wine Shop, Shashinath, Hashish Prabhu. Let's that one go. That's another dot delivery. Precision of some good tight bowling this by the bowlers of Sai Ganesh Royals Vasco. Started off nicely with Unni Krishnan, but got a maximum on that last delivery. Then Vinesh backed it up with a superb over, and now Satish doing his job. Gone straight to the man at point, and Unni Krishnan won't be dropping that one. Another one gone. Batsman coming, going. Well, Samarth Gavas is just watching them coming and going from the other end. Fourth wicket down. It's 10 for 4. DK Syed, KGN Flower Merchant, Sanjay, Green Spice, Shantadurga General Store, Shrutiya Trading, Rajendra Naik, Hanuman Sweets, Ranjit, Krishna Sweet Mart. Meanwhile, new man in, overseas meeting the overseas. Appali Kalangudkar has come out to bat. Well, I talked earlier, Appali in the middle, Punaji is somewhere here, and I am Sham Kalangudkar. So all three Kalangudkars here tonight. Later on, we'll have a light movement together, all three. Meanwhile, team in deep, deep trouble. 10 for 4. Need someone to rescue them. And these two men have done so well over the years. They have taken their team to new heights. Let's see if they can meet up together and do something magical. Nicely played with soft hands and gets off the mark with that single. Does Appali. Needs some thinking to do, these two, as the tempo is slightly down at the moment. Needs some good bit of fight back now by these two gentlemen in the middle, Samarth Gavas and Appali Kalangudkar. Nick and gone. What a catch that is from Baddi. Flashing blade and taken. Half side done packing of the Sri Kadamga Dada Bandoda. 11 for 5. Reeling at the moment
What is happening there? Just the third over. And Satish Yadav is up among wickets. 2 now. Taken by him. In fact, 3 taken by him in this over, giving just 1 run. 3 overs done and dusted. It's 11 for 5. Coming back to that list, Yashwant Tirve, Deva Vaishnava, Vishal Chaudhary, Siddharth Naik, Vijal Saroj, Bhushan Prabhu, S.M. Taylor, Sai Bhakti Store, Omkar Hair Cutting Saloon, Aisha Mobile Care, Yash Connection, Deepak Chavan, Prasad Mayekar, Prashant Chauhan, Mustaq Khan, Rupesh Fatte, Vakratund Hotel, Omkar Hair Saloon, Santosh Chari, Prashant Kasu, Sadashiv. Meanwhile, back live again. 3 overs done and dusted. 11 for 5. New man in Akshay. Meanwhile, change in bowling. It will be Unni Krishnan continuing from the tower end to Apali Kalangutkar. Looking for the ramp over the keeper's hand. Missed out. Dot delivery. Just that needs some support right now. Just the 4th over. Another 4 more overs remaining. In total of 24 plus 5. That is 29 deliveries remaining in this innings. Needs something on the board. The Sri Katamga Dada Bandoda. Out of nowhere. A miracle that happened on the first night. That they managed to get past the Bhumika 11 Karnka in that last delivery, requiring 4 runs, and Shubham Fatte hitting that maximum out of the park to seal the deal for his team. Needs that kind of magic here. Needs some runs on the board. Swing missed. Dot delivery. Coming back to that sponsors list. Shashwali Plywood, Shiv Samarth, Bharat Kumar, Rani Vine, Datta Jim, Viraj Ashok, Navdurga Store, Narayan Velinkar, God Corner, Atma Naik. Back live again. Nicely played, but no run there. As all those fielders hovering in. Man from cover, mid-off, and the bowler himself. Unni Krishnan, Sushant Prabhu, Dinesh Tari, Advocate Digambar Naik, Sheila Bar, Ganesh Govekar, St. George Fabricators, the Thai Ice Cream Parlor, and Dilip Vadar. Thank you to each and everyone from the Siddhivinayak Cricket Estate Kusgaon for your love and support. That's gone over. That's gone over, but his head. And that's for 42th boundary for Apali Kalangutkar. Score moves to 15. 15 for 5. Reeling at the moment. 1 or 2 good overs from the batting perspective. Might just shift gears and might just look at a better scorecard. 4 deliveries in. What a game we had earlier. Harshad Mathondkar bossing that game. 26 runs with the bat. And then magical spell. 2 overs, no maidens, 3 runs and 3 wickets. To completely break the back of the Sheldon Blasters. Cut away. And that will be for nobody there. And easy pickings as far as Apali is concerned. He said flesh hard, and gets a boundary. Needs some luck. This man, Apali, needs a team to take to a certain respectable total. Swing missed. In fact, that's a no ball. Might have just dragged his foot a little bit ahead to generate some extra bit of pace. This will be a free hit now. As Wasim Khargis said, as Amol Jamdade, one of our commentators from Maharashtra, says,
उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. सो फ्री हिट टाइम नाव. Inside edge, and that will trickle into the boundary. Oh, excellent effort from Surya Gaukar there. Has he stopped a certain boundary for his team? Chance for an auto. Trying to black pick. Couldn't have been. 3 runs have been taken. Excellent running between the wickets. Almost had the batter at the striking end. 3 runs to end the over after completion of 4 at the halfway stage. Sri Kadamgar Dada Bandoda 23 for the loss of 5. 23 for 5 after 4 overs. Sri Kadamgar Dada Bandoda put into bet by the Sai Ganesh Royals Vasco. It will be change in voice. It will be Wasim Kargis in the commentary box at the start of the 5th over. थैंक यू श्याम. स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का इस शानदार प्रतियोगिता आमदार चषक में. 4 ओवर की समाप्ति के बाद कटमगढ़ दादा बंदोरा का स्कोरबोर्ड पर 23 रन 23 रन. काफ़ी धीमी शुरुआत अब तक, लेकिन अगली 4 ओवरें काफ़ी निर्णायक होंगी. अभी भी अपाली कलंगुटकर मैदान के भीतर और गेंदबाजी में बदल सूर्या गावकर को आमंत्रित किया. एक आइकॉन खिलाड़ी, बेस्ट वर्सेस बेस्ट. सूर्या वर्सेस अपाली फिलहाल मैदान पर. सूर्या गावकर अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर अपाली के लिए. अपाली सामना करेगी. इनको एक बड़ी पारी खेलनी जरूरी अपनी टीम के लिए फिलहाल. सूर्या की पहली गेंद दिशाहीन गेंद, वाइड करार दिया अंपायर ने. इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में. इस रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 24 रन स्कोरबोर्ड पर. फिर से एक बार सूर्या, इस बार सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर ये शॉट को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. तेज करार ये गेंद सीधे जाके रुकी विकेट कीपर सैयद बद्दी के हाथों में. बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से एक डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए सूर्या गावकर फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर. इस बार देखिए स्लॉक स्विप जरूर खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं. पहला रन तेजी के साथ पूरा किया. स्क्वायर लेग बाउंड्री से फील्डर जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया. इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ते हुए 25 रन स्कोरबोर्ड पर. आने वाले ओवरों में कहीं ना कहीं 35-40 रन जरूर बनाना चाहेगी कटमगढ़ दादा की टीम. देखना होगा क्या करते हैं दोनों ही बल्लेबाज. फिलहाल अक्षय, ओ इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, गति थी इस गेंद में. शॉर्ट ऑफ लेंथ की ये गेंद, बिल्कुल कोई रन नहीं मिलेगा. एक और डॉट गेंद निकलती हुई इस ओवर में. दबाव जरूर बल्लेबाजों पर है. काफ़ी विकेटें खो चुके हैं, लेकिन एक साझेदारी बनाना मैदान पर जरूरी फिलहाल दोनों ही बल्लेबाजों को, अपाली और अक्षय को. लेकिन सूर्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक अपनी टीम के लिए. फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार है. इस बार अच्छी गेंद अलॉन्ग द कारपेट ड्राइव किया. लॉन्ग ऑन बाउंड्री से फील्डर जब तक गेंद पे आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, तब तक 1 रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास. इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पर फिलहाल आते हुए एक आइकॉन खिलाड़ी अपाली कलंगुटकर. 26 रन जुड़ गए स्कोर के खाते हुए. इस बार गेंद खड़ी हो गई. कैच का मौका सैयद बद्दी कोई गलती नहीं करेंगे. एक बड़ी विकेट का पतन मैदान पर, एक बड़ा झटका लगता हुआ कटमगढ़ दादा की टीम को. अपाली कलंगुटकर के रूप में अपाली बैक टू पवेलियन.
हमारे अंपायर्स काफ़ी सतर्क अंपायर्स आज के इस मुकाबले में गोविंद प्रभु और सतगिरी नाइक, और हमारे साथ थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए पुण्या पालकर भी जुड़े। एक बार तारीफ करना चाहूँगा हमारे स्कोरर गणपति नावलेकर की, बिल्कुल कल से 2 दिन से लगातार स्कोरिंग की जानकारी हमें दे रहे हैं। इस मैच में अगर बात की जाए तो साई गणेश रॉयल्स वास्को का पलड़ा भारी, काफी अच्छी गेंदबाजी, एक बेहतरीन गेंदबाजी। कल के दिन में क्वार्टर फाइनल्स में भी कुछ इसी तरीके से गेंदबाजी की थी। फिर से एक बार सूर्या अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार फुल टच गेंद जरूर थी, गली पर फील्डर, एक और विकेट का पतन। विनेश थे फील्डर, इस कैच को अंजाम दिया। शुभम गावड़े जैसे ही आए फिर से वापस जाना पड़ेगा पवेलियन में, एक और झटका लगता हुआ शुभम के रूप में, बिल्कुल निराश अपने आप से, और क्यों ना होंगे। फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, दबाव डालना चाहते थे गेंदबाजों पर, लेकिन फंस गए इस गेंद पर। गली पर एक बेहतरीन कैच वहां पर विनेश का। शुभम गावड़े बैक टू पवेलियन। शुभम के वापस आने के बाद अब फिर से शुभम पठान मैदान की तरफ बढ़ते हुए अक्षय का साथ देने के लिए, कहीं ना कहीं इन दोनों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इनके टीम के लिए। अगर एक सम्मानजनक लक्ष्य सेट करना है इस टीम के खिलाफ, साई गणेश रॉयल्स वास्को के खेमे में अगर बात की जाए तो काफी अच्छी बल्लेबाजी भी इनके, सैयद बद्दी कहा जाए, यासीन सिंगरकुटी कहा जाए, रेवन कहा जाए, और अब 2 आइकॉन खिलाड़ी भी जुड़ गए हैं। एक अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी साझेदारी की जरूरत फिलहाल। विनेश अपने बॉलिंग मार्क पर अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर एक लंबे रनअप के साथ तैयार। इस बार देखिए तेज करा रही है गेंद, बिल्कुल कुछ पड़ नहीं पाए इस गेंद पर, शरीर से जाके टकराई ये गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। एक डॉट गेंद निकलती हुई मैदान पर। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान, सेमीफाइनल 2 का ये मुकाबला। इस बार उड़ाया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन रोक नहीं पाएंगे इस गेंद को। काफी देर बाद एक चौका निकलता हुआ कटम गदादा की टीम के लिए। इस चौके के साथ स्कोर काफी देर बाद हिलता हुआ 30 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। पहली गेंद तेज करार गेंद, डॉट गेंद थी, लेकिन उसके बाद अच्छा पिक किया गेंद को, 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। ओ इस बार देखिए अपने आर्म का इस्तेमाल करते हुए विनेश, बिल्कुल शॉर्ट गेंद थी, बाउंसर का इस्तेमाल किया, गेंद जाके रुकी सीधे विकेट कीपर के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से एक और डॉट गेंद निकलती हुई इस ओवर में। इस बार भी अलोंग द कारपेट ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर तैनात किया है, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे से 31 रन स्कोरबोर्ड पर, 7 विकेट के नुकसान पर। इस बार जोरदार बल्ला घुमाया था, स्विंग एंड मिस का दृश्य मैदान पर, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, एक और डॉट गेंद निकलते हुए। क्या गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी साई गणेश रॉयल्स वास्को के द्वारा यहां पर। इस बार बेहतरीन शॉट, गति का इस्तेमाल किया, गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, काफी समय बाद निकला एक गगनचुंबी षटकार के बल्ले से। एक बेहतरीन शॉट वहां पर, 6 रन देके जाता हुआ इस शॉट से रन संख्या जरूर बढ़ेगी, रन संख्या जो कि पहुंचते हुए 37 रन 7 विकेट के नुकसान पे। $37 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ चुके हैं
अभी भी आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी देखना होगा इन 12 गेंदों में कितने रन बना पाती है। रिक्वेस्टिंग साई पालीकर प्लीज रिपोर्ट टू कमेंट्री बॉक्स। साई पालीकर जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। सूर्या गांवकर फिलहाल अपने ओवर की पहली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बार बेहतरीन गेंद, खूबसूरत गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, जोरदार अपील जरूर कर रहे हैं अंपायर पर, दबाव जरूर डालना चाह रहे हैं विकेट कीपर, लेकिन गेंदबाज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस अपील में। केवल विकेट कीपर अपील कर रहे थे लेकिन कोई दबाव नहीं अंपायर पर। एक डॉट गेंद निकलती हुई मैदान पर। ओ इस बार भी खूबसूरत गेंद, तेज करारी है गेंद, बिल्कुल गति का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूर्या जानते हैं इस विकेट पर कैसी गेंदबाजी की जाती है और वही करते हुए अपनी टीम के लिए फिलहाल एक बेहतरीन ओवर को अंजाम देते हुए, पिछला ओवर भी अगर उनका कहा जाए केवल 3 रन खर्च किए थे और इस ओवर में अब तक 2 डॉट लगातार निकलते हुए फिर से एक बार सूर्या अपने बॉलिंग मार्क पर और सामने अक्षय। इस बार अच्छा शॉट वहां पर लेकिन फील्डर जरूर तैनात किया है। केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या धीरे से बढ़ते हुए 38 रन, 38 रन स्कोरबोर्ड पर जुट चुके हैं। और कितने रन आएंगे? आने वाली 9 गेंदों का खेल बाकी। ये देखिए खूबसूरत गेंद, बिल्कुल पिछली 2 गेंदें तेज करार गेंदें, उसके बाद थोड़ी सी उंगलियां फेरी, धीमी रखी, गति में परिवर्तन किया और बेहतरीन कैच को अंजाम देते हुए शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर और एक और विकेट का पतन। शुभम पठान बैक टू पेविलियन। अगले बल्लेबाज आए हैं मुकुंद बांधोरकर अक्षय के साथ देने के लिए। 38 रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड पर और कितने रन बनाना चाहेगी कटमगढ़ दादा की टीम? मुझे लगता है लगभग स्कोर को अगर 50 तक भी पहुंचा दे तो क्षमता है उनकी गेंदबाजी में इस स्कोर को डिफेंड करने की, लेकिन क्या 50 तक ये स्कोर जाएगा ये देखना मैदान पर जरूरी। आने वाली 8 गेंदों का खेल बाकी। सूर्या गांवकर अपनी अगली गेंद लेकर आते आते बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और डॉट गेंद निकलती हुई, काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए सूर्या गांवकर अपने दूसरे स्पेल में केवल 1 रन खर्च किया है। आखिरी गेंद इस ओवर के। ओ खूबसूरत गेंद, बेहतरीन गेंद, धीमी गति की गेंद, बिल्कुल उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर भी। एक और डॉट गेंद निकलते हुए इसी के साथ खेल 7 ओवर का समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 38 रन, वही का वही रुका हुआ 38 रन। इसी बीच हमारे गेस्ट सरपंच ऑफ उसगांव गांधी पंचायत श्री रामनाथ डांगी सर, इनका आगमन होता हुआ एंड ऑल्सो उनके साथ प्रवीण राजमाने और रुपेश फट्टे भी हमारे वीआईपी बॉक्स पर जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत कॉम बॉक्स है सर। इस इनिंग की आखिरी ओवर लेकर यासीन सिंगरगुट्टी, ये भी एक जाने माने गेंदबाजों में एक फिलहाल आखिरी ओवर करने के लेके। यासीन की पहली गेंद ब्लॉक होल में, ये गेंद कदमों से टकराई, एक रन जरूर मिलेगा लेग बाइस के रूप में अंपायर का इशारा आता हुआ। जी हाँ, हमारे अंपायर गोविंद प्रभु का इशारा आता हुआ। इस सिंगल के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया और स्कोर पहुंचा 39 पर। 39 रन स्कोरबोर्ड पर। मुकुंद सामना करेंगे यासीन की अगली गेंद का। इस बार गेंद खड़ी हो गई, फाइल एक बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे
यहाँ पर कैच छूटा है, थोड़ी सी शायद लाइट उनके आंख पर गिरी थी, लेकिन इस कैच को अंजाम देना चाहिए था, इस हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना चाहिए था। लेकिन एक अच्छी बात वहां पर कटमगढ़ दादा की टीम के लिए रन आने जरूरी थे और वो चौका जरूर मिला इस आखिरी ओवर में। इस 4 रन की बदौलत स्कोर पहुंचता हुआ 43 रन पर 43 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार खूबसूरत गेंद, बेहतरीन गेंद, धीमी गति की ये गेंद, बिल्कुल उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर, कुछ पढ़ नहीं पाए मुकुंद इस गेंद पर। एक डॉट गेंद निकलती हुई इस आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर में अक्सर हमने देखा है कि छक्के चौके लगते हैं, हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी होती है, लेकिन यहाँ पर केवल एक चौका, वो भी मिस फील्डिंग के चलते निकला था। ओ इस बार बेहतरीन शॉट, बल्ले के बीचों बीच गेंद को उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए गगनचुंबी षटकार। इस छक्के के साथ 49 रन स्कोरबोर्ड पर, जिस लक्ष्य की मैं बात कर रहा था 50-55, उस लक्ष्य के करीब बढ़ते हुए कटमगढ़ दादा की टीम 49 रनों पर पहुंचती हुई। अभी भी आखिरी गेंद शेष इस ओवर की, क्या इस आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगेगा या फिर डॉट गेंद के साथ इस इनिंग की समाप्ति करेंगे यासीन? ये देखिए शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अंपायर पर दबाव डालना चाहते थे, थर्ड अंपायर को रिफर किया है। और बल्लेबाज शायद वापस जा रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए। एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे खिलाड़ी की ये खासियत है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहे मैदान पर और वापस जा रहे। शायद बल्ला टकराया था विकेटों से और इसी के चलते आउट करार दिया गया है। स्कोर वही का वही रुका हुआ 49 रनों पर, आखिरी गेंद इस इनिंग की शेष। आदेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक गेंद का सामना करने का मौका जरूर मिला है जो कि काफी निर्णायक साबित हो सकता है उनकी टीम कटमगढ़ दादा के लिए। लेकिन यासीन सिंगरगुट्टी, एक छक्का एक चौका उनके इस ओवर में लगा जरूर है। क्या करेंगे इस आखिरी गेंद पर, अपने ओवर की इस इनिंग के आखिरी गेंद पर क्या करते हैं यासीन सिंगरगुट्टी? फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बार बेहतरीन गेंद के साथ शायद अपने इस ओवर की समाप्ति करेंगे और इसी के साथ खेल समाप्त। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद कटमगढ़ दादा ने बनाए 49 रन स्कोरबोर्ड पर। कुल मिलाकर 50 रनों की आवश्यकता साई गणेश रॉयल्स वास्को को जीत के लिए। 50 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए और प्रवेश करने के लिए आज के दिन के अंतिम मुकाबले में, यानी कि फाइनल्स में। सो थैंक यू वर्गीस खरगीस। जिनको लड़कियां करती है मिस वो है वसीम खरगीस। प्रेक्षकांक लागून प्राइज, ज्याच्याकडे 2000 रुपयाची नोट असा, नोट दाखय आणि तुझे प्राइज घेऊन चल। पणजेच्यान जर कोण येला गिफ्ट वॉचर तुका मेळटले, गिफ्ट वॉचर। पणजेच्यान जर कोण प्रेक्षक ही मॅच पळयता जाल्यार यो आणि गिफ्ट वॉचर घेऊन चल। पुनाजी कलंगुटकर, आपाली कलंगुटकर आणि श्याम कलंगुटकर सोडून जर कोण कलंगुटकर असा ओळख दाखय आणि प्राइज घेऊन चल। 500 रुपयाच्यो मॅक्झिमम नोटी घेऊन यो, प्राइज घेऊन चल। ज्याच्या गळ्यात चढ सरपळ्यो असा गोल्डन, आमच्याकडे शर्ट असा आम्ही तपासतले, चढान चढ सरपळ्यो दाखय आणि प्राइज घेऊन चल। पहिले प्राइज 2000 रुपयाची नोट दाखय। दुसरो पणजेच्यान जर कोण येला गिफ्ट वॉचर तुका मेळटलो 500 रुपयाचो।
हांगा इंडिया जिखल्या म्हणून सेलिब्रेशन जाता. पाकलो, दिप्तेश नायक, भावेश नायक. सो 2 मिनटां सेलिब्रेशन जातले. तनेश मटकर आमचे एक मानेस्त हांगा पावले आसा. विनंती आसा तुमकां VIP स्टँडार येवन बसून घेवचें. तनेश मटकर. सो कलंगुटकरा खातीर प्रायज असले. आपाली, पुनाजी आणि श्याम कलंगटकर सोडून जर चवथो कलंगटकर आसा यो आणि प्रायज घेवन चल. सो 500 रुपया मॅक्झिमम कोण आसा जाल्यार बेगीन येवचो. आमी नोटी मेजता हांगा. लोकेश पाकलो, भावेश आणि दिप्तेश. असो हांव मागता हॅलो बंटी मॅक्झिमम नोटी मातशें मेजच्यो. हॅलो 21 येयल्ल्यो आसा पूण आतां परत आमी मेजता. मॅक्झिमम 500. बेगीन फास्ट मारचो हात. यो इन बिटवीन पणजेच्यान कोण येयला. यो गिफ्ट वॉचर तुजो घेवन चल. यो एड्रेस मातसो दाखय. कितेंय दाखय एड्रेस दिसपाक जाय फक्त. पणजेच्यान येयल्लो आसा. हांव मागता मॅडम सुमंत काशीदकर यांच्यानी हे बक्षीस दिवचे. गिफ्ट वॉचर आसा पणजेच्याच आमचो एक यो पणजेकार यो पणजेकार यो यो तुजेर विश्वास आसा. सो गिफ्ट वॉचर एक पणजेचोच शेट सुमन बाय प्राय तुका वॉचर दिता. मॅक्झिमम नोट्स तनेश बाबू वयर चल विथ अलन मॅडम. सो हांगा बंटी नोटी मेजीत आसा. लोकेश पाकलो, दिप्तेश आणि भावेश हो फोग मारता इंडिया जिखल्या म्हणून. सो 500च्या नोटी मेजता. सो 98 नोटी. 500 रुपयाच्यो 98 नोटी. मातसो येवचो उजवाडा घेवचो. तू खंय रावता. खंय रावता नागेशी कोणे आतां खंय आसतलो तू. खंय रावन मॅच पळयतलो ना हांगा ह्या. सो तू थर्डमॅनाक आसतलो. 98 नोटी घेवन थर्डमॅनाक आसा. तुमचें नांव. अश्वेश अश्वेश आणि अश्वेशाक प्रायज दिता एकनाथ खेडेकर. सो महेश नाकू येता. बॅक टू द गेम अँड बॅक टू यू सर हरीश काकोडकर. सो हावजी आसतलो इन हरीश सर एक मिनिट. हावजी आसा आमचे मेंबर तुमच्या मदीं घेवन पावता. 50 रुपयांक 2, 100 4 आणि प्रायज आसतले 6000 रुपया. सो बॅक टू द गेम अँड बॅक टू यू सर हरीश काकोडकर. Yes, let us continue and let's see whether this can be chased very easily or there is going to be a fight here from Khatam Gardada team. Here comes the first ball. Cut away, Sher Bahadur Yadav looking for a run out. There is this side is young side and certainly they are not going to give out easily towards the opposite camp. The celebrations of the Indian team victory of becoming the champions of Champions League T20 is still continuing here at Uzgaon ground. Siddhivinayak cricketers have done a beat now. All the supporters, enthusiastic supporters and the supporters of Team India for their country becoming the champions after 13 years. So it's all over now. Back concentration on this game. Single of the very first ball. It's cut away towards that backward point region. The ball racing away. It doesn't run across that turf. Good throw to the keeper. But couple of runs easily taken here by both the batters. Sher Bahadur Yadav and Asif. So Asif Shingan good here and Sheru. So they've thought that the target is not much, so they've decided both the batters are very technically sound. Let's not lose wickets here and give us a good start, but also not lose wickets in the heap. And both have the ability
also to go the aerial way and also strong defenses. That's the reason why maybe they're sending both Asif as well as Sheru, left and right in combination. Up and over, lovely shot, and always going for 4 runs. There is no one there in the covers. Very safe, very elegant shot. And now the fireworks, because they like the shot of Asif Shingangutti. And maybe they are telling, hit another cover drive. We are going to have more fireworks, Asif. Nicely defended, beautiful defending, coming onto the front foot and bending it down, leaning forward, just stepping it around towards the short covers, running hard in between the wickets, and a quick single taken. Moves the score to 8. Not going hard after the bowling, not going for the big lofted shots at the moment. Sher Bahadur Yadav, former Goa Ranji team player, now playing for his Vasco municipal team. Another one. This is class. This is class written all over it. Not a bad ball at all. A lofted drive. It was not in the slot. He played off the front foot, and that's as elegant as you get in tennis ball cricket. End of over number 1 is 12. 1 boundary to Sheru as well as Asif. Is 12 without loss. Just the 50 runs required, and they have got a good start with 12 runs on the board. Certainly they know very much that this asking run rate is hardly anything, not even 6 runs per over, and Apali Kalangudkar has been asked here to do the toughest job. At least the bowler should be given something to bowl at. Just one bad over, then the game is well gone. And a nice piece of running with the wickets, playing with soft hands. The fielders were very quick, agile, coming quickly onto the ball, throwing the ball back. But the running between the wickets was also quick enough. And a few more fireworks here. They are continuing as the game is progressing. At the moment, it's not quick, but Apali Kalangudkar at least is trying something, hoping that something will happen. He knows that the batters are under no pressure whatsoever, and he has got a class player in front of him, Sher Bahadur Yadav. Wonderful all-rounder he has been for Goa, trying to play off the back foot, and a quick fielding here from the short covers, coming quickly and bending it down, collecting the ball. What a performer he has been, Apali Kalangudkar, throughout. And hoping for a wide, maybe that back leg, you can see the shuffle, and that's the reason why he just bowled slightly wide Yorker here from Apali. This is a cat and mouse game here between Apali Kalangudkar and Sher Bahadur Yadav. One is a stalwart in a leather ball, trying to convert himself into tennis ball star. And Apali is a well-known star, lift up, over, in the covers. Not very well timed here. Fielded well, good throw, but couple of runs once again taken. Still playing that cover drive. Is timing the ball, but that punch is not there, that power is not there to get it towards that 4 runs. In leather ball cricket, this shot definitely would have fetched him a boundary, but not in tennis ball. It requires a little bit more punch and power. Whacked away, there's a man there, and the ball has been stopped, half stop, but runs away, still ricocheting through his foot and run. Apali thought that the fielder might go for the catch. The ball dipped down at the field last moment, and a boundary here. This was an opportunity to free his arms, and he freed his arms and getting himself a boundary. So second boundary of Sher Bahadur Yadav's innings. 19 on the board, 7 coming off this over so far.
and that is going to be a dot ball. So 7 it is. That is considered by Apali Kalangudkar of this over. As tidy as ever. End of over number 2. The power plays overs are down and dusted, and is 19 without loss. नाग्याक विनंती करता नागो मातसो हांगा यो नागो मातसो बेगीन यो नाग्या बेगीन यो काळखान तूं दिश्टी पडना असो हांगा आरोप जाता मातशें तोंड दाखय हे रातभर चालू उरपाचें आसा सेलिब्रेशन रातभर कंटिन्यू जातली आनी परत एकदा ह्या मॅचीचेर कॉन्सन्ट्रेशन इन कम्स द थर्ड ओवर Babulal Pathan, one of my favorite bowlers in leather ball cricket. Very good clean action, that jump at the last moment and generates the pace. If you see Unni Krishnan, he's bowling and he's run up, and also Vinay Satarkar, they have performed excellently in leather ball cricket, and someone Babulal Pathan is rising up the ranks with a long run up, lengthy run up, but a very rhythmic run up. They are also doing fabulously in leather ball cricket, this team coming from Nageshi Bandora. That's why you can generate the pace, good pace. And we have seen how most of the batters struggled against Unni Krishnan. He has been absolutely marvelous in this entire competition. Hardly any balls have touched the bat when Unni is bowling, and has shown really his class. All the leather ball players who have got little bit of pace will work wonders here on this ground. Cut away sharply, too short, too wide, and that is a run down for 4 runs. Clumsy effort in the field, India covers. This should have been stopped. Well, they are, at the moment I feel they have lost it in the mind. They believe that there's hardly anything for the fielders and the bowlers to bowl at, and they are not pumping, not themselves, nor the bowlers. A wonderful shot nevertheless from Ashim Shimgan Gutti. They are doing it in style. They are doing with a very technically and sound manner. No risk whatsoever. Once again, deft touch at the mid-on region. Just going to get single. Comfortably placed at the moment. And 26 is what they have got. Another 24 runs required to score. गडगड चालू हा. And that is going to be 5 wides. Trying for express pace, erring in line, erring in length, and missed by the keeper and missed by the short third man. 5 easy runs, 5 freebies in trying to be express. He has derailed from his line. 31 the score moves on to 19 more runs required. Just the target well within the reach. Trying to whack the ball, looking for a quick single, and they get the quick single. Babulal understands if he has got the pace, it has to be a good and consistent and accurate channel that he needs to bowl. Bowling wide outside, bowling those no balls, bowling those extras when the total is just 49 is uncalled for. Beautiful batting. They are looking for a single, but it went straight into the short point. No chance of a single. The fielder coming sharply, quick in towards the ball, and a dot ball to finish over number 3 is 32. 32. So 32 is what they are getting, and
Just 18 more runs required here. 10 wickets in intact, very much comfortably placed. And I'll take my time off the commentary box. I'll hand over the mic to Jay Bosley. The match might just not to go deep into the 7 or 8 overs. Over to Jay Bosley. धन्यवाद हरीश सर। इस गेंद पर विकेट निकला है, अपाली कलगुटकर ने आते आते विकेट को चटकाया है। लो स्कोरिंग का मुकाबला है, 8 ओवर में वो रन जो बनाने हैं, अगर बात की जाए तो वापसी करने के लिए आपके पास एक ही जरिया बचा है और विकेट आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ से शुरुआत तो अपाली कलगुटकर ने अच्छी करी है, लेकिन बहुत बढ़िया स्टार्ट मिला है यहाँ पर साई गणेश रॉयल वास्को टीम को। शेरू यहाँ पर 2 बाउंड्रीज लगाकर 12 रन बनाकर वापस निकले और नए बल्लेबाज मैदान पर। स्काई इज द लिमिट, सूर्या गावकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाजी बेहतरीन करी थी, अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर। अगर बात की जाए टोटल रनों की आवश्यकता है, निर्धारित 8 ओवर में सिर्फ 49 रन बना पाई और 50 रन का एक सरल लक्ष्य रखा है, लेकिन मैच बन सकता है मैदान पर। अप्पाली कलगुटकर एक तेज तर्रार गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी, समर्थ गांव से कुछ प्रयास किया था अपने टीम के लिए रन बनाने का, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अप्पाली फिर एक बार, ओ बहुत बढ़िया गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को लगी, वहां पर क्या फील्डिंग देखे, लाजवाब फील्डिंग वहां पर गली के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड कर दिया, मिला मात्र सिंगल, अपना खाता खोला यहाँ पर आते ही सूर्या गावकर ने। टोटल पहुंचा 33, लॉस ऑफ 1 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। मैं तो जरूर कहूंगा यहाँ पर 10-15 रन कम बनाए हैं, अगर 60 के आसपास का टोटल खड़ा हो जाता तो मैच और तगड़ा देखने को मिलता मैदान पर। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, सेंसिबल बल्लेबाजी, रनआउट का मौका यहाँ पर, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश लेकिन विकेटों के ऊपर से। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, फॉलो थ्रू में बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है कि वापसी करना हर का सपना होता है, लेकिन वो वापसी करने के लिए आपके पास पूंजी कम है, आपको वो रन बचाने हैं और आपके पास जरिया है सिर्फ वो विकेट लेने का। अच्छी गेंद यहाँ पर खेला, हवा में जरूर लेकिन दूर थे खिलाड़ी से। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 34 रन स्कोर बोर्ड पर 50 रनों का जवाब दे रही है साई गणेश रॉयल वास्को की टीम। रॉयल साई गणेश वास्को टीम की अगर बात की जाए तो पूरी श्रृंखला में एक दबदबा बनाया रखा है मैदान पर। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, हर एक खिलाड़ी अपना दायित्व पूरी तरह से निभाता हुआ मैदान पर दिखाई दिया है। इस बार खेला खोद कर निकाला हुआ पॉइंट की दिशा में, डीप पॉइंट पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता है 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ सूर्य की खाते की रन संख्या का टोटल पहुंचा 2 रन पर, टोटल पहुंचा 35 रन स्कोर बोर्ड पर। अब 15 रन दूर है। अगर इस मैच की बात की जाए पूरी तरह से पकड़ जमाई है साई गणेश रॉयल्स वास्को टीम इस मैदान के भीतर। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला भी एक तरफा नजर आता हुआ। ये बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, ओवर समाप्त हो गया। चौथा 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 35 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए और 15 रनों की आवश्यकता। क्या ऑफिशियल्स देखिए कड़ी धूप में कल तक यहाँ पर इस मैदान पर बहुत बढ़िया अंपायरिंग आपको देखने को मिली। गोविंद बाप्पा साथ साथ उनके साथ राठौड़, राजकिरण राठौड़ और उनके साथ आपको पुण्य पालकर और आज इस रजनी में आपको दिखाई दे रहे गोविंद उर्फ बाप्पा, सतगिरी नाइक और तीसरे ऑफिशियल्स हमारे पुण्य पालकर। मैं जय भोसले, मेरे साथ हरीश काकोड़कर सर, साथ साथ श्याम कलंगुटकर, वसीम खरगी, स्कोरर आनंद पटेल। ये बड़ा शॉट, खड़ी हो गई है गेंद लेकिन फील्डर से दूर, गेंद निकले सीमा रेखा पार, ये देकर जाएंगे 6 रन, पूरे आधा डजन रन टोटल पहुंचा। अब 41 9 रन की आवश्यकता। अब थोड़ा मुकाबला अगर पूरा बताया जाए तो पहली गेंदबाजी करते वक्त ही यहाँ पर कमर तोड़ी थी बल्लेबाज से, कम टोटल था
और निश्चित रूप से ये दूसरा सेमीफाइनल भी एक तरफा होता हुआ। शॉर्ट गेंद इस बार खेलना चाहते थे, शायद देखने वाली बात होगी अंपायर का इशारा क्या आता है यहाँ पर। गेंद टिप्पा गिरने के बाद शायद बल्लेबाज को लगने के बाद निकली थी और जिसके चलते हुए बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली। आज जिसने यहाँ तक अपनी टीम को पहुंचाया था शुभम पड़ते, थोड़े से दुर्भाग्य तरीके से रन आउट हो गए, वरना कुछ रन वो बना सकते थे। ऊपरी क्रम वाले बल्लेबाजी पूरी तरह से नाकाम रही, जिसके चलते हुए कम टोटल यहाँ पर बना पाई, वरना ये टीम भी बांदोड़ा की टीम भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर चुके हैं इस पूरी श्रृंखला में। बड़े बड़े टीमों को परास्त करके यहाँ तक पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल में वो जादू नहीं चला, वो कारागिरी नहीं चली बल्लेबाजों की, जिसके चलते हुए ये हाल है इस मुकाबले का। और इस बार खेल दिया फिर एक बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर डीप में तैनात, मिलेगा मात्र सिंगल, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और टोटल पहुंचा 42। 42 रन स्कोरबोर्ड पर 8 रन की मात्र आवश्यकता। यानी कि यहाँ से अब कहना पड़ रहा है लगभग मुकाबले में औपचारिकता बाकी रह चुकी है क्या, लेकिन कुछ चमत्कार करना पड़ेगा गेंदबाजों को। ओ इस बार खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और एक बिंदी गेंद समाप्त हो गई है। एक तरफ से देखा जाए दत्ता क्लासेस अस्तोरा टीम फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं और इंतजार कर रही है कि दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन होगी इस मैदान पर। लगभग अगर इस मुकाबले की बात की जाए 70-30 ऐसा मुकाबला है, लगभग 80-20 का ये मुकाबला बन चुका है। पूरी तरह से दबदबा वास्को टीम का इस मुकाबले में। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन दूर नहीं गेंद, कवर की दिशा में गेंद को जब तक फील्ड किया जाता है। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 43 रन स्कोर बोर्ड पर 43, 7 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों मुकाबलों की अगर बात की जाए तो आउट स्टेशन खिलाड़ी पहले बल्लेबाजी करते हुए कुछ नहीं कर पाए। ओ ये देखिए नटराजन स्ट्रोक, गेंद हवा में जरूर, कैच का मौका था वहां पर, शायद कैच पकड़ लेते तो बात कुछ और दूर तक मुकाबला खींचा जा सकता था। ओवर लगभग समाप्त हो गया 5वां, 5 ओवर का खेल समाप्त, टोटल 44 रन स्कोरबोर्ड पर, 6 रन की आवश्यकता, 12 गेंदों का खेल अभी विशेष। अठारह गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। हम देख रहे थे आपका ध्यान है या नहीं। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, जीतने के लिए 6 रन की आवश्यकता है। बॉलर कौन? आदेश गेंदबाजी के मोर्चे पर। एक गेंद वाइड के साथ शुरुआत करी है, वाइड के साथ 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन से और आगे बढ़ती हुई जीत की तरफ। औपचारिकता बाकी इस मुकाबले की, पूरी तरह से कंधे झुके हुए नजर आ रहे इस टीम के, क्योंकि रन नहीं बने। ओ बहुत बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर, घुटना टेक, तमाशा देख, 6 रन, स्काई इज द लिमिट। 6 रन के साथ मैच समाप्त होता हुआ बहुत बढ़िया जीत के साथ यहाँ पर 9 विकेट से इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश करने वाली है दूसरी टीम हमें मिल चुके हैं, जो कि रॉयल साई गणेश रॉयल स्वास्को की टीम इस मैदान पर अंतिम मुकाबले में लड़ेगी यहाँ पर दत्ता क्लासेस अस्तोरा के साथ। फाइनल का मुकाबला तगड़ा होगा क्योंकि दोनों सेमीफाइनल के मुकाबले पूरी तरह से एक तरफा हो चुके हैं। आस लगाए बैठे दर्शक, शायद फाइनल का मुकाबला यहाँ पर कांटे का होगा। आखिरी गेंद